फोन है नीचे तुम्हारे। है ये लाइट पीछे की जा तो बंद कर दो। नहीं आ गया, ऋतु ने भेजा है। नहीं तो गलती हो रही थी तुम्हारी। चलो 11 बज गए, ये मुझे टिका दिए, मैं हिलना मैंने बात सुन लिया जाना। टाइम क्या हुआ? 11 बज गए, 5-7 मिनट और भी निकलते हैं। अभी तो अभी कुछ कह रहा था 1-2 मिनट में। अच्छा फॉर्मल क्या? Yes. Dr. Rai, 1-2 minute में usually people log in by 11 to 11:03. Elders mostly who join us every day. They usually log in around that time. So, it's all right. How many you are expecting to join? I'm expecting everyone to join, but today there is some Zoom issue with some password and all. So, but still we are trying to send the Zoom ID to everyone. Hopefully, I think around at least 10 people will join. It's okay. And what is the age group? They all are elders, sir. All are people who join us are elders above 60. Some people and as well. Language both Hindi and English mixed? Yes, sir. Mix करके आप बोलिएगा, sir. ठीक है, ठीक है.
Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good नमस्कार morning. कर्नलपुरी, कैसे हैं आप? Good morning, sir. Absolutely very fine. Wonderful to know, sir. कोविड का जो है वो बढ़ता जा रहा है थोड़े दिनों से, काफी न्यूज़ आप सुने रहेंगे. तो yesterday who all lit the candles and all? Yes. I had done it and I sent it to Ritu also. अच्छा, very nice. जो हमारे एरिया का पूरा सोसाइटी का जो लाइट का था 9 से लेके 9:09 का, I sent a video. Nice. I'll ask Ritu to share with us. हाँ, तो बड़ा अच्छा, मतलब it was beautifully done. Nice. और जो हल्ला गुल्ला था वो हल्ला गुल्ला आपकी बारी नहीं हुआ, जैसे अपना थोड़ी थाली बचाने का या कुछ वो नहीं था. बिल्कुल शांति से लाइट जल रही थी और कुछ लोगों ने पटाखे वगैरह बजा दिए थे. हाँ, एग्जैक्टली. कुछ लोग पर्पस भूल जाते हैं किस पर्पस के लिए हम ये इवेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. But I think majority of people this time were very peacefully. They lit the candles and joined the fight against corona, what we are doing in India. So continuing with that, today's session we have a very special guest today. We have a very senior doctor, very successful doctor, very successful physician, geriatric Dr. Prakash Chandra Rai. So Dr. Prakash Chandra Rai has kindly joined us today to take up this session, and he has a wonderful topic to discuss with all of us today. I'll not share what is the topic. I'll ask directly to Dr. Rai to take up the session, and hopefully you will all learn something and enjoy listening to Dr. Rai. Over to you, Dr. Rai. Good morning, friends. Good morning, Dr. I am Dr. Prakash Chandra Rai. I'm a practicing geriatrician, usually in Greater Noida and Noida. I retired as Chief of Medical Services, NTPC, that is a power sector. And after that, I was attached to a few hospitals as medical director. But right now, I'm practicing as a geriatric practitioner. So this is in this all this negativity going around COVID-19 or coronavirus, जो भी हम कह रहे हैं, उसमें living for 100 years, I thought let we all discuss. Let me just share something, whatever I have been, since I take classes for aging and wellness and all these things. So I have got interaction with a big group of people, and I have got some inputs also. तो एक ऐसा टॉपिक है जिस नेगेटिविटी में ये कहना बहुत पॉजिटिव है कि हमारे में से ही कोई या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 100 तक पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे, क्रॉस कर रहे हैं. ऐसा कहा जाता है कि आजकल हमारे में से ही कोई एक ऐसा आदमी है जो कि अमूमन, जिसमें एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज है जो कि 150 साल तक जिंदा रहेगा. एंड विच कंट्री हु इज दैट पर्सन, नोबडी नोज, बट द थिंग एज द थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो लोग, जैसे मैं जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का लाइफ मेंबर हूँ, वहाँ भी लास्ट यही डिस्कशन हो रहे थे कि अब जो चैलेंजेस पहले थे कि पीडियाट्रिक्स एडल्ट ग्रुप, एक सीनियर सिटीजन 60-65, नाउ वी हैव टू एड्रेस पीपल हु आर रीचिंग बियॉन्ड 90, 100 प्लस. आप लोगों ने ये देखा बहुत से न्यूज में. सो एक आजकल आप रामायण देख रहे हैं आप लोग. अगर हम लॉन्गेविटी की बात करें तो लॉन्गेविटी मैं देख रहा था ऐसे ही, नॉट वेरी ऑथेंटिक, लेकिन मैं देख रहा था कि वो जो हमारे 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, राम युग जिसको कहते हैं, द्वापर, कृष्ण युग और आज का दिन. तो सतयुग में जैसे लोग पहले 1 लाख साल या उससे भी ज्यादा जिंदा रहते थे और कोई बीमारियां नहीं होती थी, इच्छा मृत्यु की बात होती थी. उसके बाद त्रेता युग में वो उम्र थोड़ी घट गई. अगर रामचंद्र जी के बारे में, अगर उनकी उम्र के बारे में कहें तो वो करीब ऐसा जो सोर्सेस हैं उसमें 10,052 साल तक वो जिंदा रहे. तो रफली वो पॉपुलेशन जो उस समय उतनी जिंदा रहती थी. उसके बाद वो वक्त आया कृष्ण युग, जिसमें कृष्ण भगवान 125 साल जिंदा रहे. फिर उसके बाद अगर हमारा समय, मैं जब स्टूडेंट था, मेडिकल कॉलेज में था, तब
हमारी जो एवरेज एज थी वो उस समय 31 इयर्स होती थी, और आज 2020 में 2020 में इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 years, that is 69.73. So as we see that many of us in the society, we see that people are reaching 80, 85, 90, बहुत आसानी से लोग पहुंच रहे हैं। और पहले कि हमारे स्टूडेंट्स में कहते थे कि लॉन्गिविटी जो होती है वो फैमिलीज में होती है, हेरिडिटरी होती है, लेकिन वो गलत बाद में साबित हो गया। जिन फैमिलीज में अर्ली डेथ्स होती थी उन फैमिलीज में भी लोग 80, 85, 90 तक अब सरवाइव कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर हम आगे बढ़े इन चीजों में, तो अगर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर हम देखें, अगर देखा जाए तो 35 and 40 तक हमारा बोन बैंक, हमारा मसल बैंक बस वहीं तक इंक्रीज करता है। उसके बाद उसमें डिके स्टार्ट हो जाता है अगर हम उसकी प्रॉपर उसकी केयर नहीं करें, अगर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल अगर नहीं करें। लेकिन अगर हम 60 क्रॉस कर गए हैं तो वो पुरानी चीजों को बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगेन आफ्टर 60 अगेन वी डिवाइड इन एक्टिव ग्रुप। एक वो ग्रुप जो बिल्कुल एक्टिव है, जैसे कि यंग लोग होते हैं, दूसरा एक वो ग्रुप है जो कि इसको असिस्टेड लिविंग, जो कहीं पर कुछ सपोर्ट के साथ वो रह रहा है, और तीसरा वो है जो डिपेंडेंट है। तो हम अगर एक्टिव ग्रुप में हैं या थोड़े असिस्टेड ग्रुप में हैं, तो यहीं पर हमको अपने आप में इन्वेस्ट करना है। अगर हम इसमें यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम पेन फ्री या रिलेटिवली पेन फ्री और एक्टिव लाइफ हम 100 साल तक या जब तक हम रहते हैं तब तक हम अपनी लाइफ को फ्रूटफुली एंजॉय कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से इसको स्टार्ट करूंगा। जो टॉपिक है कि किन बीमारियों से या किन आदतों से या क्या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली हम सफर करते हैं, मतलब हम लास्ट में हम बेडरिडन हो जाते हैं या हम 100 नहीं पहुंच पाते। तो उसमें जो बीमारियां जो ज्यादातर जो बहुत कॉमन है वो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज टाइप 2 जो कि एक एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। बीमारियों के बारे में ज्यादा मैं बहुत डिस्कस नहीं करूंगा, मैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा। ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे हमारे बहुत से फ्रैक्चर्स होते हैं, लोग हमारे सीनियर सिटीजन बिल्कुल नॉर्मल वो बेडरिडन हो जाते हैं और उसके बाद सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ओबेसिटी एक फैक्टर है जो कि हम मोस्ट प्रॉब्ली वी डोंट टेक मच केयर, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल और खाने की क्वांटिटी, कैलोरीज वगैरह इंक्रीज कर देते हैं, वो हमारे लिए एक बर्डन हो जाता है। स्ट्रोक, पैरालिसिस, जो इन तीनों की वजह से होता है, जो हम ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज की वजह से। लंग डिजीजेस, अगर हम स्मोकर्स हैं, अगर हमने नहीं छोड़ा या लॉन्गर पीरियड के लिए अगर हम ले रहे हैं। लिवर डिजीज, अल्कोहल जो हमारी बहुत ही प्रेवलेंट है एक मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास में जो हम सफर कर रहे हैं। एंड लिवर डिजीज के बारे में थोड़ा सा वो भी है कि फैटी लिवर होता है, जो कि आजकल आप लोगों ने बहुतों ने अल्ट्रासाउंड कराया होगा। जो फैटी लिवर वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज ही है, जो कि अल्टीमेटली अब अल्कोहल से ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में या मॉडर्न पॉपुलेशन में। एंड फॉल बैलेंस, जो हमारी एज में एक जो फैक्टर है, बहुत बार आप सुने होंगे गिर गए और उसके बाद सडनली ही कुड नॉट गेट अप आफ्टर दैट, तो वो इश्यूज है। एंड बहुत डिवेलेटेड में जो डिजीज लाइक पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया, सिंको, ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं जिसमें कि हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ये जरूर देखते हैं कि जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी, जो लोग बहुत ही एक्टिव थे, उनमें ये डिजीजेस या तो मैनेजेबल होती हैं या बहुत डिलेड होती हैं। आपने आसपास देखा होगा कि आप कितने भी एक्टिव हैं, अगर एक बार हमारा मेमोरी लॉस हो गया और हम अगर वॉन्डरर, बहुत से लोगों को देखा है आपने, पार्किंसोनिज्म हो जाए, तो हमारी जितनी भी वेल्थ है या जो भी हमारी जो माइट है वो सब किसी काम का नहीं रह जाता। देन मेल्स में प्रोस्टेट एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है, और फीमेल्स में गाइन रिलेटेड इश्यूज हैं। हमारी एक पार्टिसिपेंट, हमारी व्यूअर एक फीमेल लेडी है। एंड इंडाइजेशन, गैस, ये सारी चीजें ऐड करती हैं। एंड देन हमारे सेंसेस, लाइक हमारे विजन, क्योंकि विजन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है हमारी लॉन्गेविटी में, क्योंकि उसकी वजह से हम कभी बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, कई बार अपने को बहुत चीजों के साथ जोड़ नहीं पाते, कान का सुनना, और बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जो कि कान से रिलेटेड है।
तो हम कैसे एड्रेस करें इन चीजों को, कैसे हम इन चीजों को एड्रेस करें और कैसे हम आगे बढ़ें। हमारे कंसर्न भी होते हैं जो हमारी पर्टिकुलर एज के बाद हम सबसे पहले जो कि हमारा एक आज का मेन टॉपिक होगा कि नॉर्मली हम बहुत चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके रहते हैं, आपने पढ़ा भी है बहुत जगह से, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पाता हूं हमेशा कि फिटनेस, एक्सरसाइज, इस पे हम बहुत कम जोर देते हैं। हम भी ट्राई टू फाइंड वेज, वो मैं बाद में एक और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो फिटनेस है, इनक्योरेबल डिजीज है, हमको कोई ना कोई ऐसी बीमारियां जरूर होती है जो हमारे लिए कंसर्न है। हाउ टू कीप बिजी, कैसे बिजी रहे, अदरवाइज वो नेगेटिविटी हमारे उसमें हमारी पर्सनालिटी में आती है। रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नेबर, कहाँ आप किस पे डिपेंड करें। एक समय ऐसा आ जाता है जबकि आपके बच्चे ज्यादातर लोगों के बाहर हैं, किसी के विदेशों में है, पास में नहीं है, तो आप फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली किस पे डिपेंड करें। ये जरूर, ये शुरू में लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जबकि आप मैनेज नहीं कर पाते, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसीलिए अकॉर्डिंगली कहाँ रहें हम, कहाँ हमको सपोर्ट मिले। तो हमने देखा है कि फ्रेंड्स ही हैं, जो कलीग्स हैं, जो पुराने, वही आपको अल्टीमेटली आपके सपोर्ट में आते हैं। तो अब खैर एनीवे दैट इज इंडिविजुअल इशू, लेकिन मोस्टली ये देखें कि बच्चे लोग के बाहर हैं, बच्चे साथ में तो मिल नहीं पाते, तो बाकी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वही जो आपके साथ, और वही रहना चाहिए मेरी समझ से। फिनेंसेस अदर टॉपिक हुआ जो कि आपने पहले मैनेज किया होगा उसको, एंड सेफ्टी, हमारी अपनी फिजिकल सेफ्टी, हमारी अदरवाइज सेफ्टी, हमारा नेग्लेक्ट नहीं हो, हमारा अब्यूज हो, इससे बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं, बहुत सी डेथ्स होती हैं, बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं इसकी वजह से, वो भी आप जानते होंगे। अकेलापन, लोनलीनेस, और हाउ टू मैनेज इमरजेंसीज। तो ये चीजें हैं जो कि हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं, या कई बार हम इसको जगह थोड़ा भी अगर इसको भूलने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में जबकि हम फिजिकली इनकेपेबल होने लगते हैं, तब जाके हम इसको सफर करते हैं। तो हम कैसे करें, हाउ वी रीच 100 ईयर्स। ऑलरेडी हम 70 पहुंच गए हैं, लेकिन 70 के बाद की जिंदगी भी हमको जीनी है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने पहले कहा था कि रिलेटिवली पेन फ्री, हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते अगर हमारे शरीर में कहीं भी दर्द है। अगर एक घुटने का भी दर्द हो गया और हमारे अगर कंधे में भी दर्द है या कोई भी ऐसी चीज है, तो हमारी जो भी चीजें हमारे पास है हम कभी भी उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और दूसरा, हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, यानी अगर हम फिजिकली डिपेंडेंट रहें, इंडिपेंडेंट रहें, अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, तो हमारे लिए ये दो ही फैक्टर, अगर आप कहें तो पूरे मैनेजमेंट का और आपकी जितनी भी आपका विजडम है, ये दो चीजें अगर हमारे साथ हैं तो हम लाइफ के अंत तक उसको एंजॉय कर सकते हैं, और लाइफ डेफिनेटली उसके बाद हमारी इंक्रीज करती है। तो कैसे करें हम, तो इसका वर्कआउट सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट में डिस्कस करूंगा हाउ यू मैनेज स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस लाइफ में जो है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, रिग्रेट्स, ग्रजेस जो है कैसे आप उसको भूल जाते हैं, यू कीप लर्निंग, कैसे आप हमेशा याद करते, कुछ ना कुछ सीखना है आपको जिंदगी में जो कि पॉजिटिविटी बनी रहे, फिर आप रेलेवेंट रहें अपने लाइफ में, अपने पेरिफेरी में, अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में। पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि हमेशा डिस्कस किया होगा, शायद और भी कोई सेशंस हुए होंगे डेफिनेटली इस पे। एक स्लीप पे, नींद पे मैं डिस्कस करूंगा। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमको हमारी वेलबींग के लिए। डाइट, अगेन डाइट के बारे में बहुत से मिथ हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग इज वर्कआउट। वर्कआउट में पहले सबसे इसमें बात करना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वर्कआउट हमारे जिंदगी का सबसे आखिरी हमारी चॉइस है। आखिरी चॉइस मैं इसलिए कहता हूं कि इंडियंस आर द लेजिएस्ट इन दिस वर्ल्ड। अभी जो लास्ट सर्वे हुआ था आज से कुछ दिनों पहले, अगर आपने पढ़ा होगा शायद, तो एक मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, केवल वही हमसे ज्यादा सुस्त है, लेजी है, और उसके बाद हम यंगेस्ट नेशन है वर्ल्ड के और लेजिएस्ट नेशन है वर्ल्ड के। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज में डेफिनेटली वी ट्राई टू फाइंड आउट वन एक्सरसाइज जिसमें हमको मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी बहुत मैंने योगा सीखा हुआ है, लेकिन योगा और प्राणायाम करके हम उसको एक्सरसाइज का नाम दे देते हैं, जबकि फैक्ट है कि एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम उस जमाने की साइंस है जबकि दिन भर लोग फिजिकली एक्टिव होते थे, फिजिकली टायर्ड होते थे, अपनी हड्डियां और मसल्स तोड़ के आते थे, तो उसके बाद वो योगा करते थे।
हमने उसको तो हटा दिया अपने रास्ते से, केवल योगा को और मेडिटेशन को ही हमने एक्सरसाइज का पार्ट मान लिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एक रोल है, वो केवल दाल है, वो रोटी सब्जी नहीं बन सकता कभी भी। तो हमारी एक्सरसाइज का जो मेन पार्ट है वो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आपकी मसल्स केवल 30 साल तक 35 साल तक ग्रो करती है। उसके बाद हर डिकेड में, हर 10 साल में आप 5% अपनी मसल्स को लूज करते जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं। और ये एक्सरसाइज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मसल्स को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि आप कैसे खड़े हो, कैसे अपनी बॉडी वेट आप मेंटेन करें, कैसे आप गिरे नहीं, कैसे आपको चक्कर नहीं आए, और अगर चक्कर आए और गिरे या कोई इमरजेंसी हो तो कैसे अपने को आप में रिफ्लेक्सेस कैसे हो, जिससे कि आप अपने आप को मतलब सेव कर पाए, गिरने से बचा पाए, या किसी ऐसे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को जो कि आपको हर्ट करने जा रहा है उसको आप पकड़ पाए। इसके लिए आपको वर्कआउट बहुत जरूरी है। वर्कआउट का प्रैक्टिकली 2 पार्ट, महाभारत शुरू हो जाएगा है। वर्कआउट का 2 पार्ट हम मानते हैं बेसिकली कि अगर आपने सुना होगा कि लोग कार्डियो करते हैं और लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। एज का कोई रिलेशन नहीं है। आई एम 65, आई कैन टेल यू, मेरा अपना पर्सनल जिम है, कभी बाद में कोई सेशन होगा तो उसमें दिखाऊंगा मैं, और मैं हर मसल की एक्सरसाइज एक दिन में 30 से 35 मिनट की करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, माय शोल्डर्स, मैं सारी एक्सरसाइजेस खुद करता हूँ। और लेग की एक्सरसाइज डेफिनेटली मसल्स की डेली करता हूँ, क्योंकि वो वेट बियरिंग एक्सरसाइज, हमारी जो क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस है। तो आपको यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ ऑल दीज टू एंड वन दैट योगा यू से। तो योगा अगर प्लान करें आप, तो योगा से या स्ट्रेचिंग से या पीटी से जो हमने स्कूल में सीखा था, उससे अपनी मसल्स को सबसे पहले सपल करना है, थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज के लायक बनाना है, थोड़ा पंप अप करना है ब्लड को। उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर के लिए कार्डियो करना है। कार्डियो आप जिस कैपेसिटी में है, अगर आप बहुत फिजिकली एक्टिव हैं तो आपकी चॉइस है कि आप साइकिलिंग करें या ब्रिस्क वॉक करें या फिर आप स्टिल जॉगिंग करें या स्किपिंग करें, व्हाटएवर, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपकी कैपेसिटी हो या जो आप एंजॉय करते हैं। अगर एंजॉय नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा मजबूरी में करना पड़ेगा इसको, कि थोड़े से कार्डियो करें। और उसके बाद मसल्स की एक्सरसाइज करना, अगेन किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में एक्सरसाइज करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग शुरू से करते रहे उनको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर छोटे डंबल से, वेट से, 1 लीटर के पानी के बॉटल से या बॉडी वेट को आप यूज करके उन एक्सरसाइजेस को करें। लेकिन हम लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो कि रिहेबिलिटेशन में जो चीजें यूज होती है, अगर मैं दिखा सकूं तो ये रेजिस्टेंस बैंड्स है। रेजिस्टेंस बैंड जो कि बहुत कॉमनली आज यूज होता है, ये पहले हम लोग सर्जरी के बाद इसको यूज करते थे। लेकिन एल्डर एज ग्रुप में एक्सरसाइजेस के लिए रेजिस्टेंस बैंड एक सबसे, इससे कोई ट्रॉमा नहीं होता यूजुअली, अगर आपको पता हो, अगर थोड़ा भी, अगर आप बहुत एंथुसियास्टिक नहीं है तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। स्टेज 1, स्टेज 2 पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, आप जिम में जाएं या ना जाएं। इसमें सारी एक्सरसाइजेस को, जितनी भी आपकी मसल्स हैं, जो आपके वेट बियरिंग मसल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट को उठाती हैं, जो आपके वेट को सपोर्ट करती हैं, जो आप बाजार जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं या कोई गिर रहा है अपनी वाइफ को या हस्बैंड को, आप कभी आप सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। मैं ठीक कर रहा हूँ सर? थोड़ा सा उधर से कुछ अगर कोई रिस्पांस आए तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर राय, यूजुअली सब लोग म्यूट पे हैं ताकि आपको बिना इंटरप्शन सुन सकें। ओके, तो एक बार आपका जब सेशन खत्म हो जाएगा, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, राइट। तो आई हैव गॉट हाउ मच टाइम? Sir, you we 11:20, or you can speak till 11:40, then you will take up. Okay, right. So the next is like I told about workout, and then again which is very commonly discussed things, that is stress. Stress is normally हमको ये लगता है कि 60 साल के बाद हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि अरे यार, मैं अब तो 60 साल पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन फैक्ट है कि बैक ऑफ द माइंड में बहुत चीजें होती हैं, और ये स्ट्रेस हमारे लिए एज ए डॉक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है, हमारी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाते हैं, हमारे एक्स एंड पेन्स बॉडी में अनकंट्रोल हो जाती है, ब्रोंकियल आजमा बढ़ जाता है, एसिड सिक्रेशन स्टमक में होने लगता है। ऐसी कोई भी डिजीज नहीं है, इवन स्किन की डिजीज ये बढ़ जाती हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके बहुत से हैं, जो कि शायद आप अगर अलग से आपने सेशन लिया होगा तो लोग उसको बताएंगे। लेकिन मैं जो बहुत कहता हूँ कि साहब देखिए, मेडिटेशन कहना बहुत आसान है, सबसे डिफिकल्ट है मेडिटेशन करना। अगेन मैं उसी पे जाता हूँ कि अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिससे फॉर माई केस अगर आई एम स्ट्रेस्ड एंड आई वॉक फॉर 50 मिनट्स 40 मिनट्स, माई स्ट्रेस गोज। तो आपको अपना एक मेथड जरूर अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे इजीली है अगर आप फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या नेचुरली म्यूजिक है, आपकी हॉबीज हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यूजुअली लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो स्ट्रेस के वो तरीके कहे जरूर जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं हो पाते। आपको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से उसको चेंज करना। देन वो रिग्रेट्स लाइफ के कि ये होता तो मैं ये कर लेता। बहुत से लोग, हमको ऐसा लगता है कि आपके व्यूवर्स मोस्टली कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह से कहीं परफॉर्म किया होगा, उसके बाद की लाइफ है, तो हमेशा लाइफ में ये हो जाता है रिग्रेट कि ये करते या ये इन्वेस्ट करते या वो कराते। तो उस तरह की चीजों से बाहर निकलना है, और मोस्टली लोग हम जानते हैं बाहर निकल आते हैं, लेकिन कुछ हमेशा उसी दुनिया में रह जाते हैं और किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, वो परेशान रहते हैं। लर्निंग इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने अपने आप में भी देखा है। आप पीछे देख रहे हो कि हमारे फादर की तस्वीर है। हमारे फादर ही डाइड लास्ट ईयर एट द एज ऑफ 99, एंड टिल 91 ही वाज ग्रुप डायरेक्टर ऑफ 3 कंपनीज। एंड ऐसे बहुत से लोग, हम सब में से ऐसे बहुत हैं, उनके पास अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उनके पास ऐसा कोई इंग्लिश का वर्ड आ जाता है और या संस्कृत का वर्ड आ जाता है जिसको वो नहीं जानते हैं, तुरंत इमीडिएटली ही यूज्ड टू आइदर डिक्शनरी उनको चाहिए, और चाहिए खाना छोड़ के चाहिए। तो वो लर्निंग का एक प्रोसेस है कि हम लोग को सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने भी अपने रिटायरमेंट के बाद, मैं अभी NABH ऑडिटर हूँ, मैंने इसके बाद एग्जाम्स लिए, एग्जाम्स दिए, उसको पढ़ाई की, उसके बाद किया, और ऐसी बहुत चीजें हमारे प्रोफेशन में तो खैर पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन कुछ नई नई चीजें भी मैं ऐसा करता रहा, जिससे कि बताया आपको कि काफी मेहनत लगी उसमें। आज मैं हॉस्पिटल्स का ऑडिटर हूँ। वो टुक मी वेरी हार्ड दिस थिंग, क्योंकि मैं जिस ग्रुप में क्लासेस करने जाता था, लोग हंसते थे कि भाई इस एज का आदमी मेरे साथ पढ़ने आ रहा है, नॉर्मली डॉक्टर बाबा या उनकी एज के लोग हुआ करते थे। बट एनीवे, जब तक आप, लेकिन उसके बाद का जो सेटिस्फेक्शन है, किसी चीज को सीखने का जो सेटिस्फेक्शन है, वो आप उसको अनमैच्ड। आपकी लाइफ में अगर 5 साल 10 साल अगर बढ़ाना है, तो आपको लर्निंग, आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, चाहे वो गाना हो, चाहे म्यूजिक हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो कुछ आप कॉलेज में भूल गए, या कॉलेज में जो आपको याद था, यार मेरे पास पैसा नहीं था, हारमोनियम होता तो मैं सीख लेता, यार मेरे पास वो नहीं था, मैं ये कर लेता, तो ऐसी सारी चीजों को वो आपको बहुत ज्यादा सिखाएंगी भी और आपको एक खुशी भी देंगी। स्टे पॉजिटिव, वी कीप सेइंग स्टे पॉजिटिव। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं, इवन एक एड्स की, HIV की स्टडीज थी, कार्डियक स्टडीज थी, कि उन लोगों की लॉन्गेविटी, 40% लोगों की लॉन्गेविटी 4 साल से 5 साल ज्यादा थी जो लोग पॉजिटिव थे, और कुछ लोग जो नेगेटिव थे कि मुझे तो ये हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं क्या करूंगा। तो पॉजिटिविटी हर एंगल से, डिजीज के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एज ए डॉक्टर, लेकिन अदरवाइज हर जगह आपको ये हेल्प करता है। एंड स्लीप, जैसे मैंने बताया था पहले आपको, स्लीप जो भी आपने रिसेंटली आपने सुना होगा, पता भी होगा आपको शायद, स्लीप में हमको इन्वेस्ट करना है। स्लीप हमारी लाइफ की हर डिजीज को, हर मूड को, हर परफॉर्मेंस को, हर जो मसल्स को, इवन मसल्स के बारे में जो बता रहा था मैं, कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स को अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लीप में आपको इन्वेस्ट करना है। स्लीप ऑन एन एवरेज, नेचुरली जब एज बढ़ने लगती है, हम फिजिकली बहुत टायर्ड नहीं होते, तो स्लीप थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन 6 to 8 आवर्स, 6 to 9 आवर्स, जो भी आपका पैटर्न है स्लीप का, उसको आपको कोशिश करनी है। उसके लिए आपको प्रयास करना है कि आपको नींद आए। नींद आने के लिए अब आपको सब कुछ देखना है कि आपका एम्बियंस, आपको जो कि चीजें डिस्कस नहीं होती, आपका मैट्रेस कैसा है, आपकी कलर ऑफ द बेडशीट कैसी है, आपके रूम का कलर कैसा है, आपकी ब्राइटनेस कैसी है, उस कमरे में आपने कोई गैजेट तो नहीं रखा है, कहीं आप टेलीफोन लेके रात के 2 बजे 1 बजे या 12 बजे तक आप व्हाट्सएप पे तो बिजी नहीं रहते हैं,
मतलब ये सारी चीजें आपको कॉन्शियसली देखना है कि हमारी स्लीप जो है वो इनिशिएट हो। स्लीप का मेजर प्रॉब्लम इनिशिएशन का ही होता है सर्टेन एज में। वो इनिशिएट करने के लिए सारे फैक्टर्स जो है आपको हेल्प करते हैं, और सिंस ये किसी एक मेडिसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लीप को हमेशा किस तरह से आपको अच्छी नींद आती है आपको पता है। कुछ लोगों को नहाने के बाद नींद आती है, कुछ लोगों को हल्की म्यूजिक के बाद नींद आती है, कुछ लोगों को पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे नींद आती है, कोई ह्यूमिडिटी पे क्या होता है मेंटेन करना पड़ता है। वो सारी चीजें आपको वो देखनी है। देन आई कम टू न्यूट्रिशन। 30 की एज के बाद, 35 की एज के बाद आपका डाइजेशन जो है वो वीक होने लगता है। जैसे आपकी मसल्स वीक होती हैं, आपका डाइजेशन वीक होने लगता है। आपका जो एक्सचेंज ऑफ फूड अक्रॉस दी जो मेम्ब्रेन है जो एब्जॉर्ब जिससे होती हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं। तो आपको प्रैक्टिकली 30-35 में ही खाने का पैटर्न आपका चेंज करना पड़ेगा। मुझे प्रैक्टिस में अपने मैं उल्टा ही मैं देखता हूँ सब, जब वो 60 के बाद 65 के बाद जब उनके पास पैसा आ जाता है, मे बी रिटायरमेंट फंड या जो भी है फ्रीली, उनको वो खाने में ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं और खाने में वो ज्यादा अपने आप को इंडल्ज करने लगते हैं। दैट इज नॉट गुड। और अल्टीमेटली यू लैंड अप वेरी अर्ली, मतलब जो आप शायद आप 80 तक 85 तक 90 तक बिल्कुल नॉर्मल रह सकते थे, और हम खाने की हैबिट एंड इनएक्टिविटी की वजह से हम बहुत जल्दी हम बेडरिडन हो जाते हैं या फिर बहुत कन्फाइन हो जाते हैं अपने किसी उसमें। तो सबसे जरूरी है कि हमको अपनी कैलोरीज को कम करना है। कैलोरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कैलोरी कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन फैक्ट है कि अगर आपकी कैलोरी 1000, 1200, 1100 से अगर ज्यादा है, क्योंकि आप इस एज में आप कभी मैराथन नहीं दौड़ सकते, आप टेनिस का एक सिंगल गेम नहीं खेल सकते, तो डेफिनेटली आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी जो आप बर्न भी कर पाते हैं एक्सरसाइज करके, तो आप 200 से 250 कैलोरी आप बर्न कर पाते हैं। तो डेफिनेटली आपकी कैलोरी की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है सर्टेन एज में, आप यूं कह सकते हैं 1000 से 1100 के हिसाब से होती है। अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो अल्टीमेटली वही फैटी लिवर, देन अगेन हार्ट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जो है मैनिफेस्ट करती हैं या अनकंट्रोल्ड होती हैं। तो सबसे जरूरी है इंडियन फूड में, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली फॉर इयर्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमेशा हमारी आदत में रहा है कि ज्यादा रोटी, ज्यादा चावल, ज्यादा आलू, ज्यादा चीनी, ये खाने का शौक रहा है। और उल्टा फिर समय के साथ ऐसा बीतता गया कि हम फिर उसके बाद हमने ब्रेड, बिस्किट्स, पिज्जा, बर्गर्स, ये सारी चीजों को ऐड कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट यूज करें, खाने में लें, तो आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल आपका मैदा जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। आपका जो पॉलिश राइस है, हम जो दिल्ली में और नॉर्दर्न एरिया में खाते हैं, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। हमारा चीनी, हमारा जो ग्लूकोज, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, और रिफाइंड ऑयल। तो ये इन चीजों का खाना अगर कार्बोहाइड्रेट हम यूज भी करते हैं तो कॉम्प्लेक्स हमको रोटी यूज कर सकते हैं हम। एक बॉइल्ड राइस होता है जो कि कोस्टल रीजन्स में ज्यादा यूज करते हैं, वो भी रिफाइंड नहीं होता, वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से हमको अपने डाइट में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। देन थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे खाने में प्रोटीन बहुत कम है। ट्रेडिशनली हम लोग प्रोटीन नहीं, पहले हम दूध पे डिपेंड करते थे। एक नया कल्चर आया हमारे देश में कि हम दूध को हम खराब कहने लगे। तो अगर 30% ऑफ द फूड, अगर हमारे खाने का अगर प्रोटीन नहीं है, अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो लॉन्ग रन में जो मसल्स हमारी उसकी वेस्टिंग देखी जाती है, और उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में वो उसका एक विजिबल चेंजेस हमारी बॉडी में, जो कि एजिंग प्रोसेस में हमारी जो उसमें बहुत ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करता है। देन फिर फाइबर्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। फाइबर बहुत से फूड में आता है, 3 से 4 ग्राम, 5 ग्राम हर खाने में आता है, अगर हर सर्विंग की आप बात करें। लेकिन जैसे हमारे सेम है, बीन्स हैं, इनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, 12 से 14 ग्राम। तो आपको 32-35 ग्राम्स ऑफ फाइबर हमारे फूड में जरूर होना चाहिए, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके वेट को, आपके हार्ट डिजीज को, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन
कुछ विटामिन हैं हमारे, जो कि विटामिन डी एंड विटामिन B12, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हम वेजिटेरियंस हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो कभी कभी खाते हैं, इसलिए हमको विटामिन B12 कहीं से नहीं मिलता। तो B12 के लिए हम अगर कॉन्शियस नहीं है तो हमारी अगर एज के साथ जो हमारा बैलेंस है, हमारी जो मेमोरी है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो कॉन्शियसली हम लोग जितने भी इंडियंस हैं, B12 का लेवल पर्टिकुलरली हम 1000 के आसपास या 500 550 के आसपास मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी, अब जो स्टडीज आ रही हैं, आपको पता भी होगा, डॉक्टर्स ने भी शायद बताया होगा कि ऐसा कोई भी डिजीज नहीं है जिसमें विटामिन डी कंट्रीब्यूट नहीं करती। बीट maybe cholesterol, maybe your bone health, your migration of calcium to other places, आपकी बहुत ऐसी सब में विटामिन डी का बहुत बड़ा एक रोल है। तो विटामिन डी नॉर्मली सन एक्सपोजर से मिलता जरूर है, लेकिन हम सन एक्सपोजर नहीं कर पाते, मे बी वेरियस रीजंस में भी हमारा एक आदत में नहीं रह गया, और कभी कभी सन बिल्कुल नहीं होता या बहुत गर्म होता है तो हम नहीं कर पाते। तो बेटर है कि हम उसको पीरियोडिकली किसी मेडिकेशन के हिसाब से उसको हम हेल्प करें। फिर हमारी एज में डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ऐसे बहुत से मेजॉरिटी आप यू वोंट बिलीव कि हमारा 20 to 30%, 40% हॉस्पिटलाइजेशन अबव 65 वो सोडियम कम होने से होता है, पोटेशियम कम होने से होता है, पानी कम होने से होता है, जो कि बहुत सिंपल चीज है, हमको हमेशा ध्यान, मेडिकेशन भी उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीजें बहुत एक सिंपल हैं, लेकिन बहुत इग्नोर करते हैं, और अल्टीमेटली हम लैंड अप करते हैं हॉस्पिटल में। 2-3 दिन के स्टे के बाद पता लगता है कि साहब आपके शरीर में केवल नमक कम हो गया था, या पानी कम हो गया था, या पोटेशियम कम हो गया था। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अल्टीमेटली लास्ट में मैं फिर से, चूंकि समय निकल रहा है, तो अगर इन चीजों से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम आप 100 इयर्स की बात करें तो हमारा एक रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए आप जरूर जाएं, जिससे इन चीजों के जिनका हमने बताया आपको, उसका कम से कम अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, आप पहले उसको मैनेज कर सकें और घर पे मैनेज कर सकें, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपके रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए, 30 मिनट्स to 40 मिनट्स। बैलेंस डाइट जैसा हम डिस्कस कर रहे थे वो करें आप। और लास्ट में जो सबसे खराब है, बीइंग अ डॉक्टर मैं कन्फेस करता हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे खराब पार्ट है, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो आज भी उनको डॉक्टर्स जो है एक एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं। वो आपके जाने के बाद वो 45 साल 40 साल की उम्र में जो एक दवा देनी चाहिए वो डोजेज आपको देते हैं। कई बार वो डोजेज आपके लिए या तो ज्यादा होते हैं या कम भी होते हैं कभी कभी। दूसरा एक सबसे बड़ा खराब पार्ट क्या है कि पॉलीपैथी। हम पॉलीथेरेपी जो भी आप कह लें, कि एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आपको एक मेडिसिन देता है, फिर आपको किडनी एक्सपर्ट एक मेडिसिन देता है, आपको डायबिटीज वाला एक मेडिसिन देता है, फिर आपको ब्लड प्रेशर वाला एक मेडिसिन देता है। कई बार वो मेडिसिन अपने आप में इंटरैक्ट करती हैं, आपको उसको साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार सेम मेडिसिन आप रिपीट करते रहते हैं। मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं जिसमें कि एक ही मेडिसिन वो 3-3 कैप्सूल ले रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक डॉक्टर ने देख लिया, दूसरे ने देख लिया, तीसरे ने देख लिया, चौथे ने देख लिया। उसको पता ही नहीं है कि बेचारा वो खाया जा रहा है, वो आदमी, उसको क्या पता। पेशेंट इज नॉट सपोज टू नो दिस थिंग। सो आपसे ये बहुत ही डेंजरस है। हमारे ये डिस्कशन में कहते हैं कि आप एक मेडिसिन जब ऐड करते हैं तो आप उसकी एक टॉक्सिसिटी ऐड करते हैं हमेशा। उस टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए फिर आप एक और मेडिसिन ऐड करते हैं, उसके बाद डबल टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो मेडिसिन का ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी एक ऐसे डॉक्टर के साथ बहुत रेगुलरली अटैच रहें, जो कि अल्टीमेटली चाहे आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के आ रहे हैं, किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा के जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली समराइज करने के लिए, सम अप करने के लिए, उसको रैशनल करने के लिए वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर आपका, जो एक जमाने में पहले एक फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट था, वो एक बहुत इसमें हेल्प करता था। तो आज फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मेरी ये आपसे सलाह होगी कि एक ही डॉक्टर से स्टिक करें, क्योंकि हमारी एक हैबिट हो गई कि हर हफ्ते हम डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, उसकी वजह से भी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप कहीं भी जाएं, कहीं भी दिखाएं, ये करें। तो ये डेफिनेटली सम अप करने के लिए मैं जो देख रहा हूँ कि समय हमारे साथ, हमारे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं, हमारे ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी दे हैव रीच्ड 80 and 85, दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी एक्टिवली, दे आर वेरी फिट,
ओनली थिंग जहां पर उनको कॉम्प्रोमाइज वो कर पाए हैं बिकॉज ऑफ देयर वॉट एवर थिंकिंग, वो फिजिकली इनकेपेबल हो गए हैं और इन चीजों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए हैं। तो आपसे बस मेरी एक मेरा मैसेज ये रहेगा कि जस्ट ट्राई टू again do exercise very regularly, keep your balanced diet, regular checkup, and do not over medicate. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Rai. Very informative. I think a lot of people have questions. Mahesh Sharma ji, you have raised hand. You want to ask a question? No, I think it was by mistake. Okay. No issues. Anyways, if you have a question, you can ask now. Panel is open for questions now. No, thank you. Doctor, I have a small question. Yes, sir. Regarding you stressed much on the exercises. Sir. No, let's say at my age I am 75 plus. Sir. आप कहते हैं कि आधा घंटा या पौना घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका कुछ टाइम होता है या प्रोबेबली पूरे दिन के अंदर यू शुड बी एबल टू एक्सरसाइज योर बॉडी? अभी जैसे 15 मिनट आपने सुबह कर लिया, शाम को आप बाजार में घूमने चले गए, या कुछ थोड़ा सा घर में वेट लिफ्टिंग का काम हो गया, वेट ट्रेनिंग का काम हो गया, कुछ गार्डनिंग का काम कर लिया, तो ये आधा घंटा या पौना घंटा और कितनी मतलब एक्सरसाइज, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज रियली रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर एज? सर आप एज डजंट मैटर, आप तो 75 अपीयर्स टू बी क्वाइट बाय गॉड्स ग्रेस क्वाइट फिट। जहां आप कह रहे थे कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको स्टैगर्ड कर सकते हैं। अगर सपोज मेरी बॉडी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो मैं चाहूँ तो 10-10 मिनट भी अगर दिन में 5 बार वॉक करूँ तो हमारी 50 मिनट की वॉक हो सकती है। डेफिनेटली 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना है आपको एक्सरसाइज करते समय कि कभी भी आपकी बियॉन्ड आपकी जो लिमिट है उसको ट्राई नहीं करना है। जितनी आप करते रहें, और अगर आप ट्राई कर भी रहे हैं तो यू शुड बी प्लानिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड कि मैं इसको 6 महीने में अचीव करूंगा। अगर मैं देखता हूँ कि जो पहले मैं एक्सरसाइज में 1 हफ्ते में पहुंच जाता था, अब मैं उसको 3 महीने का टारगेट रखता हूँ वहां पहुंचने के लिए। दूसरा, कभी भी जर्क के साथ कोई भी काम भी नहीं करना, कोई एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी है। वो हर्ट करता है आपके लिगामेंट्स को, आपकी मसल्स को और आपके किसी भी पार्ट को। कैसे आप जर्क से आपने कोई भी वेट अगर उठाने की कोशिश की, तो 2 चीजों का बिल्कुल ही जो आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर करने का प्लान है, ओवर डूइंग नहीं होनी है। दूसरा, जर्क के साथ कभी भी नहीं करना है। और स्टैगर्ड आप कर सकते हैं, जैसा आपने कहा था वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एग्जॉशन आपके लिए हमारे लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो आप चाहे तो 3 बार में करें, 2 बार में करें। यूजुअली लोग 2 बार में करते हैं उसको, क्योंकि उनको अच्छा भी लगता है। एक पर्टिकुलर चीज वो मॉर्निंग में कर ली, फिर थोड़ा शाम को कर लिया। That is the best thing, जैसे आप कर रहे हैं वही करना चाहिए। Thank you very much, doctor. Thank you. और एक खाने के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन उबला हुआ खाना या थोड़ा फ्राइड खाना जो है, ऑल्दो डाइटिशियन बताते तो रहते हैं, बट फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, would you like to suggest whether one can have the combination of both the things, the vegetarian as well as the non-vegetarian? वो थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं पंजाब के बीच में थोड़ा शौक होता है तड़का लगाना है, ये लगाना, तो how do you really recommend such thing to be done, or you would like that this thing should be really scrapped in the list of खाना पीना? नहीं सर, स्क्रैप तो कभी नहीं करना चाहिए। जो आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद है, वो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में खाइए, कभी अगर खाने का मूड भी है तो। क्योंकि यूजुअली हमारी एक्टिव उतने हम नहीं रहते कभी भी, और मोर ओवर जो चेंजेस हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो फैटी फूड को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फैटी फूड तो जितना कम हो, वंस अ वाइल डेफिनेटली हम आप सभी खाते हैं, लेकिन वो जितना कम हो तो अच्छा है। और अगर खाना है भी तो वो यूजुअली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, जस्ट बिकॉज कि आप हाफ ऑफ द डे उसके बाद भी एक्टिव रहते हैं। डिनर तो जैसा मैंने हमेशा शुरू से लोगों को सजेस्ट किया कि डिनर कभी भी आप एंजॉय मत करिए लाइफ में। कोई नहीं करता वर्ल्ड में, अभी इंडियंस में हम लोगों ने स्टार्ट किया ज्यादा यूज करना, लेकिन अगर ट्रेडिशनली अगर आपको याद हो, पहले भी लोग डिनर को एंजॉय नहीं करते थे और आज भी नहीं एंजॉय करना चाहिए। अगर कुछ भी खाने को एंजॉय करना है तो ब्रेकफास्ट में और लंच में लीजिए। डेफिनेटली ऑयल हमारे लिए सूट नहीं करता, वो चूंकि समय कम था इसलिए वो पार्ट मैंने कवर नहीं किया। स्पेशली सैचुरेटेड ऑयल, सैचुरेटेड ऑयल में जैसे घी है, मक्खन है,
स्वाद उसी में आता है। अगर कहा जाए तो बेस्ट ऑयल तो घी और मक्खन ही होता है, लेकिन सिंस एज के साथ हम उसको बर्न नहीं कर पाते तो हम उसको कम, लेकिन अगर आप आजकल डिस्कशन में देखें सबसे, तो अगर सबसे बढ़िया कोई ऑयल है तो मक्खन ही है, और सबसे बढ़िया ऑयल घी ही होता है। लेकिन क्वांटिटी कितनी लें, हमको फैटी लिवर नहीं चाहिए, हमको डायबिटीज अनकंट्रोल नहीं चाहिए, हमको ओवरवेट नहीं चाहिए, हमको ब्रेन में फैट की डिपॉजिट नहीं चाहिए जिससे हमारी मेमोरी लॉस हो। तो ये चीजें अगर हम बर्न करने की कैपेसिटी नहीं है तो वैसे फ्यूल को बॉडी में नहीं ले सकते। तो उसको जितना कम रखें, जैसे वंस इन अ व्हाइल। और जैसे आपने नॉनवेज की बात की, नॉन वेजिटेरियन तो हम शुरू से ही हैं, वो हम बड़े बड़े स्मार्ट है कि हमने दूध और दही को वेजिटेरियन में कर दिया सर। तो नॉनवेज हमको सूट करता है, नॉनवेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉनवेज कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली नॉनवेज का वो पोर्शन आप अवॉइड करिए जिसके अंदर फैट होता है या रेड मीट जो होता है। तो जैसे फैट है आपका रेड मीट के अंदर ज्यादा होता है, अंडे के पीले वाले में होता है, आपके चिकन के लेग्स में होता है। ऐसे बहुत से नॉन वेजिटेरियन जहाँ पर सैचुरेटेड फैट ज्यादा है उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मसल्स तो आपको हमेशा ही हेल्प करेंगी अगर आप चिकन लेते हैं, या थोड़ा सा अगर अंडे का सफेद, रादर दैट वे अंडे का व्हाइट जो होता है वो एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन हमारी किडनी के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। अगर आप प्रोटीन की चॉइस, जैसा मैंने 30% बताया था, अगर आपकी चॉइस नंबर 1 हो तो चॉइस नंबर 1 में आपका अंडे का सफेद और आपका दूध होना चाहिए। ये दोनों हमारी बॉडी में प्यूरिन्स नहीं बनाते, जो यूरिक एसिड बनता है, हमारे गाउट्स होते हैं या बहुत जगह डिपॉजिट होता है, तो ये बहुत कम डिपॉजिट होते हैं। इवन किडनी फेलियर में भी हम एल्बुमिन यानी अंडे का सफेद हम अलाउ करते हैं, इसका मतलब बहुत सेफ है। तो वो चीजें आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक तो आपको यस मैम, वेलकम। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन सर इतना है कि जैसे आपने भी बोला है कि कई डॉक्टर्स ने एक चीज बोली कि आपको ये खानी है, दूसरा डॉक्टर कहता है ये चीज नहीं खानी है, तो इसको कैसे, हाउ डू यू रियली बैलेंस द थिंग दे? कार्डियोलो कहता है कि आपने ये बिल्कुल नहीं खाना है, दूसरा कहता है अगर आप नहीं खाओगे तो यू विल प्रॉब्ली लूज द बॉडी वेट और समथिंग दे। तो हाउ डू यू रियली मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू? Because every doctor that you go, they have their own opinion as to what one should take, one should not take it. तो किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे और किसको इम्पोर्टेंस ना दे? सर ये अनफॉर्चुनेट हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही, और वो अपना पार्ट बोल के चले जाते हैं। अब उन्होंने आपको ऐसा खाना एडवाइस कर दिया जहां पर वो आपके दूसरे डिजीज के लिए वो मैच नहीं करता, ये गलत है हमारे यहाँ। तो आप बेटर है कि किसी फिजिशियन के साथ, जैसे मैंने बताया था, आफ्टर कमिंग बैक from a cardiologist or from an endocrinologist or for anybody, for an orthopedic surgeon, you always keep a physician, a good general practitioner in your contact. तो वो rationalize कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐसी एक मेडिसिन दे दिए जिससे कि आपका पोटेशियम राइज कर गया, बहुत सी है से, बहुत टेल्मा वगैरह आपने नाम सुना होगा, टेल्मा वगैरह बहुत चीज से पोटेशियम राइज कर गया। दूसरी तरफ किडनी जो है ऑलरेडी थोड़ी बॉर्डरलाइन इफेक्टेड है, उसमें पोटेशियम का राइज नहीं करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का सिलेक्शन अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि हमको टेल्मा नहीं देनी, हमको ऐसी मेडिसिन देनी है। वो आपको जरूर एक जनरल प्रैक्टिशनर, एक बढ़िया फिजिशियन अगर आपके कॉन्टैक्ट में होंगे तो ये बैलेंसिंग हमेशा, क्योंकि पॉलीथेरेपी जो है हमारी है, पॉलीपैथी जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक मेजर इशू है। और हमारी एज में या और एडवांस एज में जहाँ की एक बीमारी नहीं होती, 2-3 बीमारियां जहाँ पर होती, यंगर एज में जो एक बीमारी है उसकी एक दवा ले ली, काम खत्म हो गया। लेकिन बाद में ये बैलेंस बहुत जरूरी है। और ये जीरियाटिक प्रैक्टिस, जैसे इमोहा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इस तरह से कंट्री में बहुत से ऐसे बड़े ग्रुप हैं जो कि इसमें धीरे धीरे इन चीजों को, मैं तो अपनी प्रैक्टिस में यही देखता हूँ सबसे पहले कि मेडिसिन को कैसे कम करूं और कैसे रैशनलाइज करूं, क्योंकि लोग खा खा के तकलीफ में है। देना भी जरूरी है और क्या देना है ये भी जरूरी है। तो दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। So we are happy with Dr. Baba. Dr. Baba is the one who is trying to maintain the equilibrium of everything there. Thank you. That's nice, sir. जी शशि जी आप प्लीज पूछिए। डॉक्टर, एक तो आपने सजेस्ट किया कि डॉक्टर एक होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ से ऐसा अरेंज किया जाए कि जनरल फिजिशियन कोई बहुत अच्छा हो? यूजुअली मैडम कोई एमडी मेडिसिन अगर आपके आसपास होगा तो आप जब बार बार जाने लगते हैं तो एक मैं नहीं, इंडिविजुअल को नहीं जानता, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि वो या कोई अगर एक्सपीरियंस जनरल प्रैक्टिशनर है आपके पास
आसपास ही जाना चाहिए, तो वो धीरे धीरे एक रिलेशनशिप बन जाती है, जो कि पहले बहुत ज्यादा थी, बीच में भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। लेकिन डेफिनेटली आपको एमडी मेडिसिन अगर हो इंटरनल मेडिसिन के लिए, तो उनके पास जरूर जाइए। क्योंकि जैसे मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी लो होता है, तो वी आर इन ए कंफ्यूज स्टेट कि कौन सी दवाई छोड़ें और कौन सी ना छोड़ें। तो मैडम, एक अगर इंटरनल मेडिसिन में एमडी अगर आपके पास है, तो इन सारी चीजों का आंसर उनके पास होगा, अगर उनके पास अगर पेशेंस है तो। दूसरा, आपने डाइट के बारे में बताया। डाइट में, अब डाइट को कैसे कैलोरी काउंट किया जाए, कितना क्या खाया जाए, कितना क्या नहीं खाया जाए, और फ्रूट्स और बाकी प्रोटीन, जैसे हम वेजिटेरियन है तो आई एम नॉट, आई डोंट टेक एग आल्सो, मीट आल्सो, मिल्क आल्सो इज नॉट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, तो हाउ टू टेक प्रोटीन? मैडम, प्रोटीन तो जरूरी है, थोड़ा कॉन्शियसली आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको यूरिक कैन वी एसिड टेक आपका ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट्स में उतना प्रोटीन नहीं है जितना प्रोटीन आपके सोयाबीन में है आपके लिए। अगर आपका सोयाबीन डजंट सूट्स मी, आई एम एलर्जिक टू सोयाबीन। हुआ कि आप मिल्क को किसी भी फॉर्म में, चाहे अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है, तो जिस फॉर्म में आप पनीर के फॉर्म में लीजिए, आप कर्ड के फॉर्म में लीजिए, चाहे आप उसके जैसे भी वो, आप पनीर को ग्रेन्यूल्स बना के अपनी सब्जियों में डाल दीजिए। टेस्ट का ही तो इशू है, तो फिर आपके लिए तो सबसे बड़ी चॉइस वो है। दूसरा प्रोटीन का सोर्स आपके लिए बीन्स है, जिसको सेम कहते हैं, जिसको हम बीन्स एंड बरबट्टी वगैरह इस इलाके में कहते हैं, वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। लेग्यूम्स हैं, आपकी जितनी दालें हैं, वो फिर आपके लिए सोर्स है। हालांकि दालों में केवल 20% प्रोटीन होता है, 60-80% तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन फिर आपको यहाँ से एक सोर्स लेना पड़ेगा। और गैस फॉर्मिंग भी है, दालें जो है इतना सूट नहीं करती हैं। देखिए, आपकी दालें थोड़ी गैस अगर फॉर्मिंग भी। गैस के लिए मैडम सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एक्टिविटी। अगर आप एक्टिव हैं तो फिर आपका गैस ज्यादा, मतलब वो नेचुरली, वो नेचुरल जो ऑरिफिसेस हैं उससे रिलीज होता है। गैस ज्यादातर उन लोगों को होता है जो कि या तो डिजीज की बात हम छोड़ देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है हम लोग हैं, और आप या हमारे लोग ज्यादातर वो कुर्सियों में बैठे रहते हैं। वी ट्राई फाइंड वेज टू सिट डाउन एंड ट्राई फाइंड कैसे कहाँ बैठ जाए, खड़ा होना कितनी जल्दी अवॉइड करें। अगर आप थोड़ा सा, जैसे पहले हमारे एक फ्रेंड ने कहा था कि आप ठीक है, आप बहुत अगर एक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट करके 15 मिनट करके 4 बार, आप जितना भी एक्टिव रहेंगी आपका डाइजेशन भी इंप्रूव करेगा। आपको जो ये लगता है खाना नहीं पचता है, वो भी थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, और आपको गैस की भी तकलीफ कम होगी। हाँ, ये पर्टिकुलर एक फूड एलर्जीज होती हैं। किसी पर्टिकुलर फूड से अगर आपको प्रॉब्लम है, जो कि एक फिनोमेना ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको एक खास बैगन से प्रॉब्लम हो गई, उससे ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो इंडिविजुअल बेसिक हो, आपको अगर उससे एलर्जी है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इन जनरल, जैसा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा वेट भी आपका ज्यादा है, तो वेट जिनका ज्यादा होता है उनका डेफिनेटली इंटेस्टाइन में भी वो ये फैट डिपॉजिटेड होता है, तो उसमें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ज्यादा सिम्टोमेटिक हो जाती है। तो वेट का भी कम करने का जो तरीका है, वो दुनिया में एक्सरसाइज से वेट किसी का कम नहीं होता। अगर आप कितनी भी लंबी एक्सरसाइज करें, अगर आप 2 घंटे भी चलती हैं, तो आपका हार्डली 2 किलो 3 किलो वेट कम होता है। वेट कम करने का तरीका केवल खाने की कैलोरीज को कंट्रोल करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं। आपको खाने का जो भी एक तरीका है, हम लोग को ज्यादातर, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, उससे वेट गेन बहुत ज्यादा होता है। तो यार, खाने की कैलोरीज, आपने जिसका कैलोरी कैसे कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट मत करिए। एक तो आप उसको 5 से 6 बार में खाने को डिवाइड कर लीजिए, और जितनी चीजें मैंने पहले बताई, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अपने खाने से गायब कर दीजिए। कोई कचौड़ी नहीं जी, कोई समोसे नहीं, कोई जो आजकल तो वैसे भी बंद है लॉकडाउन की वजह से। अभी तो सभी हम सुधरे हुए हैं जी आजकल। तो अभी का छोड़ दें, लेकिन ये मैगी भी हमने ऐड कर लिया अपने खाने में। अपने खाने में हमने पिज्जा भी ऐड कर दिया, अपने खाने में हमने सारी बिस्किट्स ऐड कर दी, अपने चॉकलेट्स ऐड कर दिए। जो पहले हम खाते थे उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हमने ऐड नहीं की। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस, तो हम ये नहीं कहते आप एंजॉय नहीं करिए, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्शियसली उसको ध्यान देना। दूसरा, आपसे दोबारा कब मिला जा सकता है? जल्दी हम दोबारा आपसे मिलना चाहेंगे। ये तो डॉक्टर बाबा बताएंगे। नहीं सर, आप अवेलेबल रहिए, हम आपको बुलाते रहें। आज तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आगे भी टाइम निकालिए, प्लीज आइए।
जरूर, अभी तो टाइम ही टाइम, हफ्ते 10 दिन तक, उसके बाद अभी हम थोड़ा सब लोग मूवमेंट आज वैसे बहुत ही अभी स्टेज रेस्ट्रिक्टेड। पर है कि आपके सजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैडम देखिए, मैं अपनी अगर आपको रूटीन बताऊं तो मैं 6.5 दिन बिल्कुल जैसा मैंने आपको खाना बताया वैसा मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूं। सुबह का नाश्ते मेरा 2 से 3 अंडे का वाइट रहता है, मैं सुबह रोटी लेता हूँ, सब्जी लेता हूँ और दूध लेता हूँ। फिर करीब 11 बजे फ्रूट्स लेता हूँ। दोपहर के खाने में मिनिमम चावल, देन अगेन दाल और एक सब्जी और दही होती है। और उसके बाद खाना, चूंकि फॉर्चुनेटली मैं डायबिटिक नहीं हूँ, हाइपरटेंसिव नहीं हूँ। पहले था मैं हाइपरटेंसिव, वो बाद में कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। 18 साल ब्लड प्रेशर की दवा मैंने खाई थी, लेकिन अभी इस समय फॉर्चुनेटली वो कंट्रोल में, तो नहीं खा रहा हूँ। तो उसके बाद 12-1 बजे 2 बजे के बाद केवल शाम को फ्रूट्स। शाम के खाने में कोई, मेरे खाने में कोई रोटी नहीं है, कोई चावल नहीं है, कोई मीठा नहीं है और कोई तला हुआ नहीं है। तो लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि आधा दिन, हफ्ते में 1 दिन, हाफ अ डे मैं सब कुछ खाता हूँ जो आपने कभी सोचा होगा या मैंने कभी, मेरा मन करता है खाने का, तो आई कीप इट फॉर अ डे, हाफ अ डे इन अ वीक। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि सब हो गया 2 महीने खाए हुए जी, चाट पापड़ी नहीं खाई। किसी के मन में ये रहता है जी चिकन खाया, वो नहीं खाया, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ब्रेक होना चाहिए। तो मेरी मेरी अपनी मेरी प्रैक्टिस वैसी है, मैं अपने ऊपर ऐसी प्रैक्टिस। हम ज्यादा बीमार इसलिए कि चारों तरफ से हमारे ऊपर सजेशंस आते रहते हैं एंड वी आर सो कंफ्यूज कि क्या करें और क्या ना करें। दो माय मैडम डॉटर इज आल्सो डॉक्टर, उसके लिए उसके ये कहा हिसाब जाता से है अब कि उसके लिए कहा जाता है कि जो आपकी ग्रैंडमदर ने जो खाना नहीं सुना है, जो अभी ग्रैंडमदर ने खाना नहीं खाया है या उनके जमाने में जो खाना नहीं था, वो सारा खाना आपके लिए बेकार है। खाना वो खाइए, उसके बाद जो खा रहे हैं वो आपकी चॉइस। किसी की बात मत सुनिए, आपकी ग्रैंडमदर को याद करिए, उस जमाने में जो चीजें थी और जो रूटीन थी, वो अगर आप फॉलो करते हैं वो परफेक्ट है। अगर एक प्रिस्क्रिप्शन खाने का देना हो तो यही प्रिस्क्रिप्शन है। वर्ल्ड ओवर यही कहा जा रहा है कि जो ग्रैंडमदर के समय जो चीजें अवेलेबल थी और होम कुक, घर नेचुरली घर ही बनता था उस समय, वही परफेक्ट है। उसके बियॉन्ड जो आप वेंचर करते हैं उसके लिए आप तैयार रहिए, कुछ ना कुछ जरूर आपको ट्रबल देके जाए। डॉक्टर साहब एक अगर छोटा आपको सा क्वेश्चन, पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? मेरा नंबर आप शेयर कर सकते हैं सर। जी 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 मैम, हम शेयर कर देंगे सर। डॉक्टर साहब मैं मेरा एक चीज नंबर पूछना शेयर कर चाहता दीजिएगा, हूँ। मैं अवेलेबल, अगर अवेलेबल मान लीजिए किसी वजह से पिक नहीं कर रहा हूँ तो मैं तुरंत आपको दोबारा कांटेक्ट कर लूंगा। डॉक्टर साहब अंडे के बारे में पूछना चाहता था आपसे। आपने भी सर, बोला है कि अंडा व्हाइट खाते हो और येलो को क्या, हाँ कहाँ फेंकते हैं आप लोग? येलो तो सर योक येलो तो फेंक देते हैं सर। क्यों सर, वो क्यों फेंकना क्यों? ये वही है, सैचुरेटेड फैट है सर। तो इसको कोई इस्तेमाल कोई और कैसे किया जा सकता है? ये तो सबसे वी फील रियली पेन्ड कि एक अंडे को तोड़ो और उसका पीला निकाल दो, थोड़ा व्हाइट खाओ और बाकी जस्ट थ्रो अवे इन दी डस्टबिन। वो थोड़ा सा इट डजंट साउंड अस खराब लगता है सर, और हाँ, इसलिए भी खराब खराब लगता है। लगता है कि एक चीज किसी और को मिल जाए, कोई गरीब बंदे को मिल जाए तो आई बी मच हैप्पियर टू हैव दैट। तो पर हमें हमारे थोड़ा घर ही में तो लगता है। सर, ये हमारी मदर है, शी इज 96, तो उनकी केयर करने में जो बच्चे हैं उनको, यंग, उन लोगों को खिला देता हूँ मैं। लेकिन ये खराब तो लगता है उसको फेंकना, और स्वाद भी उसी में है, टेस्ट भी हाँ उसी में उसी में आता है। स्वाद भी उसी में ही है। तो उसको कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ और आप एडवाइस कर दो कुछ, ताकि सर वो अंडा भी पूरा न्यूट्रलाइज, खाया जा सके, उसको न्यूट्रलाइज भी किया जाए। सर आप जैसे बता रहे थे, आप मार्केट भी जाते हैं, आप थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो आप अगर आप आधा पीला अगर आप खा रहे हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल है, और आप मतलब कई इफ एंड बट्स हैं, तो वो बेसिकली एक कैलोरी है, घी है आपका। घी मक्खन के बारे में जो मैंने कहा, पीला भी वही चीज है, पीला वाला एग्जैक्टली वही उसका एक तरह से केमिकल एनालिसिस आप करने जाइएगा तो दोनों एक ही सैचुरेटेड फैट ग्रुप में आते थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हैं। डॉक्टर राय, आपके पीपीटी में हम जो पिक्चर देख रहे थे वो आप ही की पिक्चर्स हैं एक्सरसाइज करते हुए? एक्सरसाइज करते हुए? जी। हाँ, मेरी एक पिक्चर है, मैंने ज्यादा शेयर नहीं किया, थोड़ी सी है उसमें बस। आप अगर एक बार हमें अपना एक्सरसाइज का रूटीन भी बता दें। वैसे तो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, इंडिविजुअल रूटीन अलग होती है सबकी, लेकिन अगर आप बता दें तो काफी इंस्पिरेशन मिलेगी हमें। फॉर एल्डर्स इज नेचुरली गुड। सर अभी टू स्टार्ट विद एल्डरली के लिए तो मैंने जैसे बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है जो रेजिस्टेंस बैंड है, ये आजकल मार्केट में या ऑनलाइन भी आपको 600-700 रुपए मिलते हैं, और वो आप देखिएगा तो आप पर्टिकुलर मसल्स हैं। मैं ज्यादा सर्टेन एज के बाद हम ज्यादा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है हमारे थाई मसल्स, क्योंकि वो हमारा वेट बियरिंग है 24 आवर्स, वो हमको वो बेयर करता है हमारे वेट को।
तो सबसे पहले हमारी क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, तो वो करनी चाहिए पहले। जो इवन मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है मैडम, जैसा आप सुन रही हैं, तो जैसे पहले हम वो एक सिटअप्स करते थे, तो आप कॉम्प्रोमाइज सेटअप्स पहले से स्टार्ट करिए ग्रेजुअली। सबसे पहला तो आपको वही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। बाकी तो वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, उसमें थोड़ा आप बीच बीच में थोड़ा फास्ट चलना, वो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कार्डियक स्टिमुलेशन मिल जाएगा। तो वो करने के बाद जब बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाती है, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लिए। कुछ अगर समझ में नहीं आता तो स्कूल में हम जो पीटी करते थे वो अगर हम करने की कोशिश करें, उसके बाद जब बॉडी हमारी थोड़ी सफल हो जाती है तो पैरों की एक्सरसाइज फर्स्ट स्टेप में आप सभी स्टार्ट करें, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वाड्रिसेप्स को करने के लिए पार्शियली जो हाफ कॉम्प्रोमाइज किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप थोड़ी मतलब एक सेटअप पार्शियली करिए और फिर खड़े हो जाइए। तो आप 2 से स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करिए, 5 से स्टार्ट करिए, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई पेन है कहीं भी, जैसे मैंने बताया था, कोई चीज जर्क से नहीं करनी है, जो नहीं कर पाते वो मत करिए, क्योंकि वो टाइम लगता है कई बार। जहाँ तक मेरी रूटीन है, मैं सुबह मॉर्निंग में डेली एक मसल की एक्सरसाइज करता हूँ। किसी दिन मैं अपने ये शोल्डर्स की एक्सरसाइज करता हूँ, एक दिन मैं बाइसेप्स करता हूँ, एक दिन मैं ट्राइसेप्स करता हूँ, फिर एक दिन मैं ये रिस्ट एंड आर्म्स करता हूँ। लेकिन पैर की एक्सरसाइज जैसे मैं बता रहा था, मैं डेली करता हूँ उसको, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो हमारे काम का है। ये कभी आप बताएं कहेंगे तो मैं, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, कभी ऐसा होगा तो मैं कभी थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा उसको। लेकिन आज तो हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो वो सारा सामान ऊपर रखा हुआ है, एक्सेप्ट मैं रेजिस्टेंस बैंड्स को ले आया था, जो कि मैंने ये दिखा। पहले तो ये इंडिया में नहीं मिलता था, पहले बाहर से मंगाया था मैंने, यूएस से मंगाया था, लेकिन अब ये सिंगल स्ट्रिंग के ये मिलते हैं। ये जो है सिंगल स्ट्रिंग के ये मिलते हैं यहाँ पर डिकैथलन वगैरह में। डिकैथलन जो स्पोर्ट्स सेंटर है, वो डॉक्टर साहब आप एजुकेट कर सकते हैं इसमें, यंग आदमी हैं आप ज़्यादा। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसमें 2 तरह के होते हैं, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसी वीडियोस हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको हर मसल के लिए, बॉडी के थाइस के लिए, लोअर लेग के लिए, आर्म्स के लिए, इवन नेक के लिए, हर चीज़ की एक्सरसाइज है। लेकिन उसमें ये भी एक्सरसाइजेज हैं कि हम 65 या 70 के ऊपर हम कैसे एक्सरसाइजेज करें। तो हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि अगर आप बहुत सीवियरली हार्ट पेशेंट अगर नहीं है, इवन हार्ट पेशेंट्स को भी आजकल हम एजुकेट करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। वॉकिंग के बाद, थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग के बाद आप इसको कर सकते हैं। Great. We have a physio session every day 8 a.m. So I'll ask our physiotherapist to demonstrate. सर फिजियोथेरेपिस्ट इसमें उतना ज्यादा उनको ये करिएगा कि स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ वाला पार्ट जरूर बीच बीच में बताया करें, और जो लोग घरों पे कर सकते हैं उसको। Correct. हाँ, यूजुअली हम जॉइंट्स को हम मोबिलिटी पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं फिजियोथेरेपी में, मतलब हमारा जॉइंट ज्यादा मूव कर जाए, हम रोटेट कर लें, हमारी स्पाइन हो जाए। लेकिन थोड़ी मसल्स की एक्सरसाइजेज जिसमें कि मसल स्ट्रेंथनिंग, बैक मसल्स, थाई मसल्स, आर्म्स की मसल्स, इसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको एक स्टडीज आएंगी, लेकिन अभी मैं उसको कोट नहीं कर रहा हूँ, जो मसल्स की अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जैसा मैंने बताया, उनको कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम है। जो मसल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जो कार्डियो करते हैं, उनमें हार्ट पेशेंट्स कम है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर भी उतना ही डेडली है, हार्ट भी उतना ही डेडली है। और जो बेटर मसल के एक्सरसाइजेस करते हैं, उनमें डायबिटीज कंट्रोल है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती, फ्रैक्चर्स नहीं है, उनका बैलेंस है, उनकी मेमोरी है, सब कुछ इंप्रूव करती है। Absolutely right. राइट। एक क्वेश्चन मेरा था, कैन आई आस्क? हाँ जी सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि आपने, डॉक्टर साहब ने बताया कि 1000 कैलोरीज एज में इज सफिशिएंट, 1200। जी सर। तो आई थिंक मेरा जैसे आई वॉक फॉर 1.5 hours per day and I keep myself busy almost entire day. I don't sit on the chair continuously for a long time. So मेरे लिए तो 1000 calories या 1500 calories is too less, because once what happened was when I developed sugar, but I am diabetic, तो मुझे जो prescribe किया गया 1700 calories, जब मैंने वो strictly I followed that, and what happened was that after few days मेरी लेफ्ट आर्म में एनर्जी नहीं रही। आई वाज ड्राइविंग, तो मुझे लगा कि मैं ड्राइविंग व्हील ठीक से नहीं कर पाऊँ। मैंने साइड पे रोक करके
मसाज करके देन आई वेंट अप एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर। बोले 1700 कैलोरी आपको बताया था इसलिए कि आप थोड़ा स्लिप तो करोगे ही, तो स्लिप तो आप किए नहीं, इसलिए आप 2100 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। That time it was about, I was my age was about 60 years. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1.5 आवर्स वॉक करना तो बहुत कम लोग करते हैं, और अगर आप 40 मिनट की वॉक करते हैं तो करीब 300 कैलोरी आप बर्न करते हैं। तो अगर आप 1.5 आवर्स अगर कर रहे हैं तो यू आर ऑलमोस्ट 500 कैलोरीज के आसपास आप बर्न कर रहे हैं अगर उसको, तो आपको यू हैव टू ऐड ऑन। वो जो हमने कहा था बिल्कुल बेसिक, जिनकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल उसमें है, तो उसमें 1000-1100, लेकिन इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन तो अलग अलग है, जैसे आपके केस में अलग है, और जहाँ भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं वहाँ तो और भी केयरफुल रहना है उसमें। मेरा एक सजेशन था यहाँ पर थोड़ा सा, सब्जेक्ट टू योर अप्रूवल एंड अप्रूवल ऑफ ऑल द experts. I'm not expert, I'm just a patient. Take the calories but burn them. Take as many as you want but burn them. Yes. तो आपने सुना होगा कि the first thing which normally मैं जब यंगर लॉट में एक्सरसाइज जो कि हमको लास्ट में डिस्कस करना चाहिए था, मैंने पहले डिस्कस किया क्योंकि मेरे पास हाफ एन आवर का सेशन था, तो आई कुड हैव मतलब डिस्कस मेनी अदर थिंग्स और डिजीज एंड वो डिटेलिंग मैंने नहीं की। Exercise is very important. You said very correctly. Even diabetes के complications, I can tell you there are two reasons जिसमें diabetes के complications को prevent करते हैं। एक तो sugar level है, दूसरा exercise। मतलब exercise से diabetes में ये देखा जाता है कि end disease है, जितनी end organ disease है, हमारी kidneys, brain, eyes, इन पे effect नहीं होता है जो लोग अच्छी exercise करते हैं, irrespective of शुगर लेवल भी उनका गड़बड़ है। अब उतनी डिटेल हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम एक जेनेरिक हमने डिस्कस किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन तो हमेशा ही अलग होंगे सब जी, और उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया तो बिल्कुल ही नहीं होना है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, शुगर बढ़ जाए चलेगा, लेकिन हाइपो तो कभी भी नहीं। जो भी रीजन है उसमें अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज किसी दिन करते हैं तो आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी, अगर आप एक्सरसाइज कम कर रहे थे अकॉर्डिंगली लोग धीरे धीरे। डायबिटीज में तो पेशेंट इज अ डॉक्टर आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाएगा, आपको खुद ही आपको डेली रूटीन मैनेज करनी पड़ेगी, जो आपका खाना और सब कुछ आता है। थैंक यू डॉक्टर। Right. आपके बाद वो फ्रूट लेते हैं या सैलेड लेते हैं, अन्न नहीं लेते, तो डॉक्टर जनरली डायबिटीज को कहते हैं कि दिन में 1 फ्रूट खाओ सिर्फ। हाँ जी, तो उसमें कैसे चलेगा? नहीं आप फ्रूट ज्यादा लेना चाहते हैं, तो दोपहर से लेकर रात तक आप 1 फ्रूट में कैसे गुजारा कर सकते हैं? मैडम आपका शुगर लेवल ही सब डिटरमाइन करेगा आपकी कितना कैसा आपका चल रहा है शुगर लेवल, तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो फ्रूट्स खासकर फ्रूट जूसेस तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेने हैं, आपको पता ही होगा, डॉक्टर ने बताया होगा। होल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, उसमें भी जो बहुत ही जिनमें ज्यादा शुगर होता है, जैसे कि मैंगो का सीजन आ रहा है, हमारी ग्रेप्स हैं, और ज्यादा अगर आप केले खाते हैं, इस तरह के फलों में, चीकू में, इन्हीं को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप सेब ले रहे हैं, सबसे बढ़िया जिसको फल हम नहीं मानना चाहते उसको सब्जियां, खीरा वगैरह है, इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। बेसिकली सब कुछ, जैसे वो तो मैंने एक जेनरिक बात की, लेकिन आपका शुगर लेवल कैसा है, आप डायबिटीज आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपके किडनी लेवल, जो आपके लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, या फिर आपका यूरिया कितना लेवल है, आपका यूरिक एसिड कैसा है, ऐसी बहुत चीजें, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, बहुत चीजें मिला के तब जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन एक जनरल मैंने आपको बताया कि शुगर के लिए अगर आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जितने फूड हैं वो आपको खाने चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक वाले, जैसे मैंने बताया कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके जो फ्रूट्स अभी मैंने बताया, जितना भी ऑयल है, स्पेशली रिफाइंड ऑयल है, इससे आपको बचना है, या उसके जो जहां से आता है वो। ऑयल में मस्टर्ड ऑयल वी यूज। डेफिनेटली देखिए, कोई ऑयल परफेक्ट नहीं है, लेकिन रिफाइंड ऑयल से सारे ऑयल अच्छे हैं। और आपको ऑयल, वो भी एक कैलोरी है, वो आपको कितनी कैलोरी रिकमेंडेड है उसके हिसाब से आपको ऑयल लेने हैं। ऑयल कुछ विटामिन को चूंकि एब्जॉर्ब करता है, तो पर्टिकुलरली हम लोग मान के चलते हैं 10 to 15 ml ऑफ ऑयल, एनी ऑयल, जो भी आप मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एडवाइजेबल ये है कि थोड़े बहुत दूसरे ऑयल भी आप यूज करें, क्योंकि हर ऑयल परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ अच्छा है, सब में कुछ खराब।
Fine. Thank you, doctor. Thank you very much. Okay, ma'am. Right. Thank you. Thank you very much. कोई और सवाल डॉक्टर साहब के लिए? इस डॉक्टर साहब का पर्सनल नंबर चाहिएगा. जी जी मैम. आप शेयर कर दीजिएगा, नंबर तो आपके पास है. जी सर. हाँ जी. ठीक है, अगर कोई और सवाल नहीं है तो देन विल thank Dr. Rai for sparing so much of time from his busy schedule, enlightening us with his wisdom. A very important topics he has touched upon today, and I think it was very informative. All of us have learned a lot, and I would request Dr. Rai, we'll keep in touch with him whenever he is free and available for this session. We'll try to bring him again. And it would be our pleasure to have him again. Thank you so much, Dr. Rai. Thank you. Wonderful. Thanks everyone. Thank you. Thank you, doctor. Thank you. Thank you, doctor. Dr. Rai, this was one of the most powerfully packed session with so much information, very well presented in such a short period of time. It was a very all-comprehensive session. So thank you very much. It was a very short period. Normally it takes around 2 hours, 2.5 hours. That's why I'm appreciating that इतने थोड़े समय में आपने इतना information, इतने fluently, इतने comprehensively, इतने beautifully present किया. You know. Thank you. Thank you. It was really a wonderful session. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you, sir. Bye Thank you, sir. bye. Thank you, sir. Thank you.